हेलो हेलो मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। Yesterday I gave you one problem. Were you able to do that problem? हेलो, मैंने कल जो प्रॉब्लम दी थी वो आप कर पाए? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम आ रही है। ओके ओके। कल जो मैंने प्रॉब्लम दी थी वो आप कर पाए? ठीक है जी, पता नहीं आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या मेरी आवाज नहीं जा रही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? यस मैम। ये प्रॉब्लम अब आज जो कल हमने किया, इट वाज फॉर ए discrete random variable. So what if I have a continuous random variable? ठीक है, अगर मेरा जो random variable है अगर वो continuous होगा तो क्या होगा? So if I have a continuous random variable, ठीक है, अगर मेरा जो random variable है, if the मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट एक्चुअली। अब कैसे आ रही है? मैम अब ठीक है। बेटर है। Okay, I have changed the headphone. So if I have a discrete random variable, ठीक है, so then I know that if it is a discrete random variable तो मेरा probability distribution function कैसा होगा? ठीक है, but if I have a continuous density function, ठीक है, if I have the random variable, so if I have a joint continuous density function, ठीक है, अगर मेरा joint continuous density function की अगर हम बात करें, so if there are two random variables x and y, so these are two continuous random variables, then there exists a function fx y such that it is greater than 0, such that this distribution, this is joint distribution, this is equal to minus infinity to x minus infinity to y f u v du dv. So I can say that for a joint probability density function, so this should be equal to minus infinity to infinity f x y dx dy, this is equal to 1. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी joint density function की अगर मैं बात करूँ, if I have two continuous random variables and I want to see the joint probability density function, then any joint density function is valid if it is satisfying this
and if it is satisfying this property, and it should be greater than 0. तो ये दो properties जो हैं, if they are satisfied, then it is a joint probability density function. ठीक, तो it is same as a discrete density this probability distribution function, but for the symbol. ठीक है, इंटीग्रेशन आ गई समेशन की जगह, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ. ठीक, इसी तरह अगर मैं if I want to find out the marginal probability, ठीक है, if I want to find out the marginal probability density function of x और y, ठीक है, तो ये क्या होगा, the marginal probability density function will be this. And if I have to find out for y, then this will be minus infinity to infinity. ठीक है, नोट करेंगे. ठीक है, you may just note this thing. Discrete में क्या था, we had a summation of this pxy. वहां हम summation लेते हैं, यहाँ मेरे पास integration आ गया. ठीक, so this is the marginal probability density function. Similarly, I have conditional this probability density function. तो उसमें क्या होगा, for y given x. ठीक है, so if I have to find out this, then this will be x1 y for x1 y over if fx is greater than 0. Similarly, I can write for x given y. I can write for x given y. ठीक, now you see the problem here. ठीक है, अब हम ये प्रॉब्लम करेंगे. So find k. अभी जो मैंने बताया वो चीज तो क्लियर है ना आपको? Yes, ma'am. So we have done for discrete. So it is same for discrete and continuous, but for the method. So in case of discrete variables, we take a summation, and in case of continuous variables, we take the integration. ठीक, तो ठीक है, मैं आपसे ना एक टेबल बनवाऊंगी. I want you to make a table. I will tell you the, मैं आपको एक फॉर्मेट बना के भेजूंगी टेबल का, उसके अंदर आप फिल कर लेंगे. ठीक है, अगर आप एक टेबल बना के पूरी प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे ना, तो इजी हो जाएगा आपके लिए. एंड यू कैन मैम मेक, आपकी आवाज कट रही है. अब आ रही है? हाँ मैम अब आ रही है, बीच में कट गई थी. अच्छा, एक मिनट. एक्चुअली आई हैव चेंज्ड द ईयरफोन. ये हैंड्स फ्री वाले में आपके साथ भी प्रॉब्लम होती है क्या? Whenever I use this hands free, this earphone, there is a problem. लाउड स्पीकर पे लेता हूँ मैम. अच्छा, आप लाउड स्पीकर पे लेते हो, उससे बहुत शोर नहीं होता? मैम अकेले बैठा हूँ घर में, कोई है ही नहीं. अच्छा, मतलब आप होता भी अकेले नहीं हो. कोई. ओके ओके, एक्चुअली माय डॉटर इज आल्सो हियर ना, उसकी भी क्लास होती है, तो फिर उसको डिस्टरबेंस होता है. लेट मी जस्ट चेंज माय ईयरफोन. होल्ड ऑन प्लीज. How is it now? मैम फाइन. I think this is better. ये hands free जो है ना, it is a useless thing. Okay. So now I have to find k. Now this is fxy, it is given to me. I have to find k such that, oh ये symbol यहाँ miss हो गया. So this is 1 less than equal to x less than equal to y. ये है. Now find k so that this kxy will be a joint probability density function for this. So now I know that
for this integration fx, for this fx to be a valid this density function, this should be equal to 1 ना, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब लिमिट हम देखेंगे x 1 से 2 है और y की लिमिट क्या है x से 2। ठीक है ना, तो ये हो गया 1 to 2 एंड x to 2 k x y dx dy, so k is a constant। dy dx नहीं होना चाहिए था अगर हम y की लिमिट वो वाली ले रहे हैं x से 2। नहीं ठीक है, लिमिट ठीक ली है मैंने। मैम मैथ्स में तो हम ऐसे करते थे कि जो बाहर वाला मतलब जो एक मिनट होल्ड करना नेहा। ओके, क्या कह रहे हो आप बताओ। मैम मैथ्स में तो ऐसे करते थे कि जो dx dy लिखा है तो जो dy होगा तो जो बाहर वाली लिमिट होगी वो dy की होगी, और अगर dy dx लिखा होगा तो जो बाहर वाली लिमिट होगी वो x की होगी। तो इस केस में जो dx dy लिखा है तो जो बाहर वाली लिमिट होनी चाहिए वो y की होनी चाहिए, मतलब नहीं, बाहर नहीं। x से। अच्छा ये, हाँ ये उल्टा हो गया। ये एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये लिमिट y की है ना तो ये y हो जाएगा, ये लिमिट x की है। ओके ठीक है, अब ठीक है ना, ये y की लिमिट है ना x से 2। हाँ, अब आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। यस मैम। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, तो ये हो गया y x into y square by 2 x to 2 so y, so this is कैलकुलेट करना पड़ेगा। बुक में कुछ और आंसर है, कोई बात नहीं जी, आप चेक कर लेना। मेरा, आपका कितना आया है?
मैम मैंने तो लिमिट डाली नहीं, मैंने वही छोड़ दिया ऊपर ही। पे ऐसे ही छोड़ दिया। चलो आप कर लेना। ठीक है, बुक में कुछ और आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, यू जस्ट चेक ना, कोई इसमें कैलकुलेशन में कुछ आंसर एरर हो गया। ठीक है, सो यू कैन डू ए प्रॉब्लम लाइक दिस। आप ऐसी प्रॉब्लम कर बता दो सकते क्या है। हैं। आंसर इस बुक में 8/9 आ रहा है। ठीक है मैम। It's 8/9 in the book। ठीक है, एक प्रॉब्लम और मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, कि ये आप लोग अभी कर लें। लेट द जॉइंट PDF X and Y be this। So you have to find this। ठीक है, ये निकालना है हमें। कर पाएंगे? ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कर, हिंट दे देती हूँ मैं आपको इसका। सो व्हेन आई हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी जो यहाँ गिवन है, तो इट विल बी x की लिमिट क्या होगी, 0 से 1/2, और y की लिमिट होगी 0 से 1/4। So it is x plus y dy dx। ये निकालना है। When I have to find out this, when I have to find out this probability क्या है, that x is between 0 to 1/2 and y lies between 0 to 1/4। So the limit of x is 0 to 1/2, limit of y जो है it is 0 to 1/4, x plus y जो है मेरा फंक्शन है, dy dx। So you just have to integrate it। ठीक है, कर लो जी, करके तो छोटा सा ही है इंटीग्रेशन, इसका आंसर बताएंगे। अनीश आप बताओगे आंसर? अनीश आप हैं क्लास में? अनीश, अनीश तो जवाब नहीं दे रहे। राजीव आप हैं? यस मैम। आप बताएंगे जी इसका आंसर। मैम आंसर क्या है? 3/64। मैम मेरा तो 1/256 आ रहा है। 1/256 चेक कर लेता हूँ एक बार। चेक करो एक बार आप बताओ राजीव, कैलकुलेट करके आपका कितना आया? बुक में मिस्टेक हो सकती है, फिर भी आप एक बार चेक कर लो। राजीव आप भी निकालो जी, 2-3 लोग आप सब निकालोगे ना तो फिर चेक हो जाता है। आप ऐसे बैठे रहोगे तो फिर बाद में कर नहीं पाओगे। ओके मैम।
वो करके बताओ। Hello. Yes. बैटरी आप ही का फोन यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, आ गया आंसर। राजीव, कितना आया आंसर? कोई बात नहीं जी, बुक में इसका आंसर 3/64 है, आप कैलकुलेट कर लेना। मैम आ गया। आ गया 3/64 आ रहा है। यस मैम। ओके ओके, सो दिस इज करेक्ट। तो ये तो हो गया, ये आपने कर लिया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y। So if I have to find out this ex, जब x जो है it is from 0 to 1, y is from 0 to 1, so this is x fxy dx dy। ठीक है, यहाँ दोनों की लिमिट 0 to 1 है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। 0 to 1 0 to 1 x into x plus y dx dy। You do the calculation part, ठीक है, and you will get this answer। आप नोट कर लें, आप कैलकुलेशन कर लेना, do the calculation yourself। Then we will find out Okay. ey। ठीक है, ey हम कैसे निकालेंगे? It will be 0 to 1 0 to 1। Now it will be y fxy dx dy। It will also be equal to 7/12। You just note the answer। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। exy अब मुझे निकालना है, क्या आप ये नोट कर लें, मैं ऐसे ही होगा, बस आप कैलकुलेशन आप कर लेना। So next I have to find out exy। So this will be xy ठीक, तो x की जगह xy आ गया, xy का एक्सपेक्टेशन। So this will come out to be 1/3। अब अगर मेरे पास ये तीनों है तो मैं कोवेरियंस भी निकाल सकती हूँ ना। आई कैन फाइंड आउट कोवेरियंस, आई कैन फाइंड आउट वेरियंस, कुछ भी अगर मुझे निकालना हो मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, e की पावर e इंटू ई दिस x प्लस वाई क्या होगा? आप लोग लिखते रहें या नोट ऑब्जर्व कर लें कि क्या है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो फिर ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है ना। तो बड़ी इजी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमें यहाँ करनी है, अगर आपको आती होगी तभी आप कर पाएंगे। Okay, if I have to find out this x plus y,
तो ये क्या होगा, विल बी 0 to 1 x plus y x plus y, ये मेरा fxy है, dx dy। ठीक है, तो द आंसर वुड बी 7/6। इसका भी आप आंसर लिख लें, 7/6। अब ये जो रो निकालना है मुझे, ठीक है, रो एक्स वाई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई over under root variance of x and variance of y। ठीक है, तो अब पहले वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे, फिर वेरिएंस ऑफ y निकालेंगे और फिर कोवेरियंस निकालेंगे। फॉर्मूले आपके पास सब हैं, ठीक है, अब कल मैंने कराया भी था आपको, यू हैव ऑल द फॉर्मूले। तो दिस रो दिस विल बी इक्वल टू 1 - 1/11 आंसर आएगा इसका। ठीक है, जो ये रो एक्स वाई है ना, रो, इसका आंसर आएगा -1/11। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू द कैलकुलेशन पार्ट। कर लेंगे आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है, सो आई एम लीविंग दिस फॉर यू। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन वैसे आपको फोटो खींच के भेज दूंगी। इवन इफ यू हैव नॉट कॉपीड यू विल बी एबल टू डू इट। मैं आई विल शेयर इट। ठीक है, तो मोमेंट्स हम कर चुके हैं, मोमेंट्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये यहाँ फॉर्मूले सब दिए हुए हैं, कोवेरियंस, वेरिएंस, एवरीथिंग इज गिवन हियर। ठीक है, तो ये पीपीटी मैंने अभी डाली नहीं क्लासरूम पे, बट ये कहीं से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो मैं भेज दूंगी आपको। ठीक है, so this we have covered, moments of a random variable we have covered. So the next topic is moment generating function. अगला हमारा जो टॉपिक है इट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ऐसे लिखा नहीं हुआ हमारे सिलेबस में कहीं, पर हमें करना है बिकॉज इसके बारे में जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी बात होती है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से अलग से लिखा नहीं हुआ, पर जब हम इक्वालिटीज जब हम पढ़ेंगे, यूनिट 4 जब हम करेंगे, तो वहाँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इन सब की बात होती है। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, नाउ फॉर एनी रैंडम वेरिएबल x हैविंग ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन fx, the MGF is given by this. A moment generating function, it is given by this MGF, इसको हम बोलते हैं moment generating function. So it is given by this, so E of EF, and so for continuous, if x is a continuous random variable, then the moment generating function will be given by this, and if it is a discrete random variable then it is given as this. ठीक है, for probability distribution। ठीक है, अगर मेरा x continuous random variable है तो ये उसकी probability distribution function है। t is a constant, t जो है constant है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम इसका कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? So these are the properties of a moment generating function. So if I multiply the random variable by x, this by constant c, then it will be
this, and the MGF of the sum of a number of independent this variables is equal to the product of their respective MGF. Okay, it is given here. So if I have n independent random variables x1, x2 and so on up to xn, तो उनका जो sum है उसका MGF क्या होगा? It would be the product of their respective moment generating function. एक प्रॉब्लम हम ये कर लेते हैं, r plus 1 factorial into 2r. So the solution is like this. So the MGF जो है it is given, it is a discrete random variable. यदि ये फॉर्मूला है discrete random variables के लिए, इसकी डेरिवेशन मैंने कराई नहीं, बट हम कर सकते हैं. This is one of the methods of finding the moment generating function. अब यहाँ मुझे जो है ये दिया हुआ है मीन ना, मीन वैल्यू मुझे दी हुई है म्यू आर डैश जो है इट इज गिवन ओवर हियर. तो इन टर्म्स ऑफ टी आपका कुछ आएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके बताएंगे. इन टर्म्स ऑफ टी आपका ये सम सीरीज विल बी देयर, तो इसकी इट्स ए सीरीज इन टर्म्स ऑफ टी निकाल सकते हैं. क्या कर रहे हैं मैम? हाँ जी, ट्राई करें. तो ये हो जाएगा टी की पावर आर प्लस 1 फैक्टोरियल 2 raised to the power r over r factorial. R is equal to 0 to infinity. क्या आया जी आंसर? मैम टी वाला टर्म तो मेरा कट ही गया पूरा. नहीं कटा. कटेगा नहीं जी, क्या आंसर है मैम? टी तो रहेगा 1 plus 2 आंसर क्या है मैम? into 2t plus मैम 3 into 2 plus t की पावर r आ रहा है मेरा. 2 plus t की पावर r नहीं, हाँ, r तो हम r की तो वैल्यू पुट कर देंगे ना 0 से लेके इन्फिनिटी तक. ठीक है. नहीं, ये यहाँ r plus 1 फैक्टोरियल ये कट जाएगा, ये हो जाएगा r is equal हाँ to मैम वो 0 कट to गया. infinity है ना, t की पावर r, तो ये रह गया r फैक्टोरियल 2r, तो ये हो गया r फैक्टोरियल 2t की पावर r is equal to 0 to infinity. Now if you put the values of 0 1 2 3 r की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये सीरीज आ जाएगी एक प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहें ऐसे ही छोड़ दें, नहीं तो ये जो है
ये इसका आंसर है। वैसे मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन की प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं आपको, ठीक है, जितनी बस मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी इतनी ही आएंगी। एमजीएफ की प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये तो मैंने करा दी, बुक में दी हुई है तो मैंने आपको करवा दी। इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है जी। तो ये हो गया। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से पहले एक बार बस अब मैं ना, आई जस्ट वांट यू टू टेक सम टाइम, कि आप थोड़ा टाइम लें और देखो कि हमने जो अब तक पढ़ा है, ठीक है, यू टेक योर टाइम एंड रिवाइज वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ, ठीक है। क्या रिवाइज करना है आपको ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। माई स्क्रीन इज विजिबल ना? यस मैम। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस, then discrete random variable and its distributions, and then you just observe the moments of continuous and discrete random variables, ठीक है। आपका जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आप एक्सपेक्टेशन लिखें, कॉन्टिन्यूअस की क्या होगी, डिस्क्रीट की क्या होगी, ठीक है, यहाँ आप लिख के देखें। देन यू राइट फर्स्ट मोमेंट आपने लिख ली, यू राइट दिस सेकेंड मोमेंट आप लिख के देख लें, ठीक है। आपका जो है वेरिएंस, यू राइट डाउन वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। और हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जो हमने प्रॉब्लम्स मैंने आपको न्यूमेरिकल्स जो भी अब तक कराए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम अब जॉइंट किए तो आपका हो गया इंडिपेंडेंट, आपका सिंगल हो गया, ठीक है। फिर अगर आपका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो उसका मीन क्या होगा, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका मीन क्या होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। फिर आपका जो है कोवेरियंस, कोवेरियंस तो सेम ही होता है सबका, बस ये मीन आपका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट टेक टाइम, कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आप थोड़ा टाइम निकालो और ये सब इसको आप कलेक्ट करके देखो कि आर यू एबल टू मेक आउट द डिफरेंसेस। फिर आपने जब जॉइंट हमने किया तो फिर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने किया, ठीक है। तो क्या दोनों में डिफरेंस है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूअस का, इसी तरह ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। सो वे इफ यू कलेक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट सी, एक बार अगर आप कर लोगे ना तो ये तो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। एंड दोज ऑफ यू हु विल बी परसुइंग सम ट्रेनिंग और सम कोर्स इन डेटा साइंसेज और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यह यहाँ जो ये टर्म्स आप देख रहे हैं ये वहाँ यूज होंगी। सो इफ यू आर फेमिलियर विद दिस covariance, correlation, coefficient, all these, so it will be easier for you to understand those things, है ना। तो ये बेसिक है उसका, बिल्कुल बेस, जैसे सेंटेंस का बेस होता है ना अल्फाबेट, उसी तरह से, ठीक है। सो यू टेक टाइम टुडे एंड collect all these things what we have done, ठीक है। तो एक बार मैं अटेंडेंस देख लेती हूँ। ओके, 9 स्टूडेंट्स, आज स्ट्रेंथ कुछ कम है और दिन से, पता नहीं मैम। कोई बात नहीं जी। तो अब आप थोड़ा आज पढ़ लें, आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, ये दिस यूनिट इज अबाउट टू फिनिश, तो फिर इसका एमसीक्यू हम आफ्टर दिवाली रखेंगे। मंडे को छुट्टी है उसमें तो